Mission 80 just became more interesting with a set of sweeping changes that are set to be introduced, at least in the next list for the UP Lok Sabha tickets of the BJP. Now, the party deliberated 25 seats left for it to declare from its quota when its core group met on Monday. This also includes Barabanki, where the nomination is empty after the announced candidate, Upendra Rawat, withdrew after an objectionable clip of him surfaced. Now, the Congress CEC also met in the evening, but there's still no word on who their candidates for the Uttar Pradesh 17 seats that they have been allotted, especially Amethi and Raebareli. Sources now suggest that the party has sounded out spokesperson Supriya Shrinek to contest from Amethi after Rahul Gandhi expressed his discomfort with coming back to his UP constituency, and Priyanka Gandhi conveyed her reluctance to contest from her mother's current seat, Raebareli. So where does that leave things? Well, the BJP has already announced 51 out of the 74 seats in its UP quota. The Congress has released 0 out of the 17 in its kitty. But it's the choice of candidates who were discussed which makes the direction being taken in UP very, very interesting. Who are the likely candidates in the next list that is going to be announced? Let's get you started with the information that we have of the seats that will be from UP in the third list, who are the sitting MPs, and who are going to be the likely candidates announced. Rajendra Agrawal, who is the incumbent of the BJP from Meerut, is going to be replaced. Who could be the possible replacements? Arun Govil, the Sri Ram of TV. Kumar Vishwas, who is known for his various concerts, his various functions where he does the recitation of the Ramayan, and Meerut Cant MLA Amit Agarwal is a possible replacement for Rajendra Agrawal. Remember, Rajendra Agrawal had a very narrow victory margin in 2019, barely 0.4%. So a stronger candidate is being sought. Sanju Verma, Harshvardhan Tripathi, Lokesh Jindal continue with us. IP Singh, spokesperson of Samajwadi Party, also joins us. Welcome, sir. First comments, Harshvardhan ji, TV के श्री राम, अरुण गोविल या कुमार विश्वास या अमित अग्रवाल? नहीं पद्मजा जी, ये नाम चर्चा में है, लेकिन एक बात तय है कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट रहा है और उसके पीछे वजह यही कि राजेंद्र अग्रवाल जिसको कहते हैं ना कि बहुत उनका अंतर कम होता गया। दूसरा, वो जो बज़ क्रिएट करना होता था वो मेरठ में क्रिएट करने की स्थिति में वो नहीं रह गए थे। और मेरा ये मानना है कि जो प्रत्याशियों की सूची दिख रही है इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां पर अभी चूंकि समाजवादी पार्टी भी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, भानु प्रताप को प्रत्याशी बना दिया और वहां मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो नेता है उनके, वो कह रहे हैं कि किसको आपने लाकर खड़ा कर दिया। तो दरअसल समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक मुश्किल है कि उनका प्रत्याशी अभी एक तरह से वहां के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, तो हो सकता है कि उधर भी प्रत्याशी बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का कोई प्रत्याशी होगा तो वो उनके लिए लीड लेने में थोड़ा आसानी होगी। बताइए आईपी सिंह जी, आप ही के लिए सवाल है। आपकी अपनी परेशानियां है वहां, अभी पिछले हफ्ते ही आपने कैंडिडेट अपना डिक्लेयर किया, मैं पढ़ रही थी वहां पे कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई हटाइए इनको। कहां से ले आए आप ये एडवोकेट? पद्मजा, बाराबंकी का आपने जिक्र किया। बीजेपी के सीटिंग सांसद थे और उनके कर्म पूरे देश और दुनिया ने देखा कि बीजेपी के सांसद क्या करते हैं। और सच बताएं पद्मजा, 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी 2004 रिपीट करने जा रही है। ऐसी ही परिस्थितियां थी जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टिकट नहीं काटे और सबको रिपीट कर दिया, और पूरे देश में जब टैली आई तो बीजेपी बुरी तरह पिछड़ गई थी। जो साइनिंग इंडिया जैसे बड़े बड़े नारे थे और एक्सप्रेसवे या 4 लेन बनाने की बड़ी बड़ी बातें होती थी, और 138 सीटों पर बीजेपी जब सिमटी तो सत्ता उसके हाथ से 10 वर्षों के लिए चली गई। आप इस बात को आपको तो जरूर, आप बड़ी पत्रकार हैं, समझदार हैं, आपको ये बात जिक्र करना जरूर चाहिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर क्या था, हमारे विधायकों की संख्या क्या थी। हम ऑलमोस्ट 37% वोट शेयर के साथ आज खड़े हैं पूरे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के जो स्लोगन थे, चुनाव शुरू हो गया कि घर आपके
घर के अंदर जो गैस का सिलेंडर है, जब वोट डालने जाइए तो उस गैस सिलेंडर को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगरबत्ती जरूर दिखाइए। 339 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। सर भानु प्रताप जी की तो बात कीजिए। चलिए आपकी मैं मेमोरी रिफ्रेश कर देती हूँ। भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप जी को जो खड़ा किया गया है, एक तरफ हैं अरुण गोविल जो टीवी पे श्रीराम का पोर्ट्रेयल करते थे, दूसरी तरफ आपके जो एक कैंडिडेट है उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। आइए आपको सुनवा देते हैं। मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मस्जिद के लिए भी ऐसा ही नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन वो भी नहीं रहना। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं। आईपी सिंह जी कैसे डिफेंड करेंगे इनको? आपके कैंडिडेट हैं संजय निषाद। बिल्कुल अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम पुनर्विचार करेंगे, गलतियां होती हैं। क्या संजय निषाद को, जिन्होंने भगवान राम के पिता राजा दशरथ को कहा कि ये राम उनकी संतान ही नहीं थी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्या संजय निषाद को क्षमा मांगने के लिए कहेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा? उन्होंने कहा कि भगवान राम श्रृंगेरी ऋषि के संतान थे, राजा दशरथ के संतान नहीं थे। ऐसी परिस्थिति पर चर्चा और डिबेट देश में क्यों नहीं होती? ये सवाल उत्तर प्रदेश पूछता है, ये सनातन धर्मी पूछते हैं, जो देश का 80% हिंदू है वो पूछता है कि वैसे आप सनातन धर्म के बारे में आप बात करें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए। अच्छी बात है, आजकल हर कोई सनातन धर्म का रक्षक है। नेक्स्ट सीट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रयागराज। रीटा बहुगुणा जोशी, veteran leader, came from the Congress, member of parliament. This has also been her father's seat. She is likely to be replaced. Who are the probable candidates? Sanjay Mishra, who was the former chief of the Enforcement Directorate, retired in 2023, and Abhilasha Nandi, who is the mayor of Prayagraj. Very interesting name, Sanju Verma. Sanjay Mishra, who was given at least 3 extensions, retired last year, now being considered for Prayagraj. You know the howls of protest this is going to set off. Padmaja, that in the BJP, there will be a formal press release. The Central Election Committee decides the candidates. And till then, any kind of rumor mongering is at best speculation. So I will stick to facts. I will not speculate. But I have to rebut what Mr. IP Singh of the Samajwadi Party said. इन्होंने जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की छवि दिखाने का प्रयास किया, ऐसा लग रहा था मानो उत्तर प्रदेश बैंक्रप्सी, दिवालियापन के कगार पर है, जबकि जो असलियत है वो कुछ और ही है। एंड आई टेल यू व्हाई उत्तर प्रदेश इज डूइंग फेनोमिनली वेल। 2017 में बिफोर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए, सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स थी। Today there are 10 functional airports to over 75 destinations with 150 flights operating every single day. योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की समिट में कहा था अगले साल तक उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट्स होंगी। पॉइंट नंबर 2, 2017 में the installed power capacity was 12,800 megawatts। आज उत्तर प्रदेश में, एक मिनट पद्मजा, you are very particular about me. But we have to discuss candidates. Data which was wrong. So let me finish in 20 seconds, please. क्योंकि इन्होंने तो बहुत कुछ कहा उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा, इन्होंने तो गैस सिलेंडर प्राइसेस तक के बारे में बात की। Give me please, bear with me for 20 seconds. Okay, only 20 seconds. सुन लीजिए। Yes, अभी मिस्टर आईपी सिंह सुन लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, ये सब कौन बनवा रहा है? डबल इंजन सरकार बनवा रही है। आपने तो कुछ भी नहीं किया, इसलिए यहां बैठकर बीजेपी को भाषण मत दीजिए। रही बात कैंडिडेट्स की, आई विल रिपीट, the winnability quotient matters the most. We had a strike rate of 92% in Lok Sabha 2014. We had a strike rate of 70
28% from Uttar Pradesh in Lok Sabha 2019. We will better our strike rate of LS 2019 in LS 2024 from Uttar Pradesh. Okay, winnability is everything. Let's take a look at the Kesarganj seat. Kesarganj is now a household name. Why? Because of this man who's also become a household name for all the wrong reasons. Brijbhushan Sharan Singh, the former chief of the Wrestling Federation, has now been ousted, is likely to be ousted from his Lok Sabha seat as well. But who is his replacement? Ketki Singh, his wife, is a likely replacement. Even his son, Karan Bhushan, is being sounded out. Harshvardhan ji, what do you make of this choice? मतलब अगर आप बृजभूषण को हटा रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी को ले आ रहे हैं, ये तो वैसे ही हो गया कि एक बार एक भाजपा के नेता ने एक अभद्र टिप्पणी की थी मायावती जी के बारे में, फिर उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया था स्वाति सिंह, फिर उनको मंत्री भी बना दिया. डज दिस फ्लाई विद द वोटर्स? नहीं पद्मजा जी, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए. और अगर भारतीय जनता पार्टी ये करती है तो कम से कम उसकी छवि के लिए, और भले ही एक सीट को कहें, और मैं तो बार बार कहता हूं इस समय किसी भी सीट पर नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उसमें उत्तर प्रदेश में तो किसी सीट पर, वरना जो प्रत्याशी, जो 53 सीटें हैं उनमें बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो बदले जाने चाहिए थे. मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से बचना चाहिए. और ये जिसको कहते हैं ना, कई बार आप परसेप्शन के लिए भी कई चीजें करते हैं, लेकिन कई चीजें परसेप्शन के साथ साथ पार्टी की पूरी छवि को तय भी करती हैं. बृजभूषण शरण सिंह आज वहीं पर खड़े हैं. केतकी सिंह पहले भी एक बार लड़ चुकी हैं जब बृजभूषण शरण सिंह जेल में थे, और चूंकि वहां ताकतवर माने जाते हैं, उनकी अपनी सीट पर उनका बहुत प्रभाव है. लेकिन वो जो उनका है ना, मेरा टिकट कौन काटेगा बताओ, पत्रकारों से जिस अंदाज में वो सवाल करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये टिकट देंगे तो ये बड़ा विचित्र सा होगा. एंड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट बृजभूषण शरण सिंह, संजू वर्मा, I remember soon after the entire election happened and Brijbhushan Sharan Singh's close aide Sanjay Singh had been made the president. Here is what his other son, Prateek Singh, he had held up this poster. Dabdaba to hai, dabdaba to rahega. Okay, Prateek Singh is not being considered for the ticket. But I mean, you have one son saying dabdaba hai, dabdaba rahega, another son being named ticket. How does this square with your Shakti campaign? सो पद्मजा जी, मैं हर्षवर्धन जी की बात से मेल खाती हूँ. बीजेपी में टैलेंट की कमी नहीं है, और सशक्त करने वाले जो प्रत्याशी हैं, पार्टी को और सशक्त करने वाले जो प्रत्याशी हैं, उनकी कमी नहीं है. सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन बृजभूषण शरण सिंह, बट आई विल सर्टेनली से दिस कि यदि आप बीजेपी की पहली और दूसरी सूची को ध्यान से देखें, कर्नाटका में 11 incumbents were dropped. We dropped the likes of Nalin Katil, who was the former Karnataka BJP president. हरियाणा में सेकंड लिस्ट में 6 सीटों का ऐलान किया गया, जहां पर 3 सीटों में इंकम्बेंट्स कंटिन्यूड, बट 3 सीटों में हमने उम्मीदवारों को बदल दिया. यहां तक कि सुनीता दुग्गल को सिरसा से बदलकर अशोक तंवर को दिया, करनाल से हमने एमएल खट्टर को दिया और संजय भाटिया को बदल दिया. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब प्रत्याशियों का ऐलान करता है तो बहुत सोच समझकर many things come into the equation and it is then that a candidate is decided. बट मैं हर्षवर्धन जी से एक बात कहूंगी, जब आप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलते हैं, और बोलना आपका हक है, though he has not been declared guilty, तब उतनी ही बुलंद आवाज से हमको कैराना में से जब बार बार समाजवादी पार्टी नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाती है, उस वक्त लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हर्षवर्धन जी नहीं, और आमतौर से मीडिया चुप्पी साध लेती है. इस बात से मुझे एतराज है. With the greatest of respect, I don't think it's a fair thing to say. Everyone raises questions about Irfan Masood also, about Kairana also. All those questions are raised and they'll be raised about Brijbhushan Sharan Singh also. Next seat I want to talk about, and Lokesh Jindal, pay attention to this, is Pilibhit. Very interesting. Varun Gandhi apparently is going to be on his way out. Jitin Prasada, who is a sitting minister in the Yogi cabinet, Brahman face, he has done the Brahman Mahasabha before he joined the BJP, was rallying the Brahmins of Uttar Pradesh. What I want to ask you, Lokesh Jindal, many people are wondering, to you and IP Singh ji, both I want to ask, you go first, क्या वरुण जी कांग्रेस का रुख तो नहीं कर रहे? Well, if that happens, that would be good for the country
Good for the country. You know that he was actually arrested for making a comment which was anti-minority before an election. I'll tell you why. Any person who right now considers the nation and the country is good would be against BJP, would be against authoritarianism, would be against anti-constitutionalism and the manner in which BJP is functioning. Right. Electoral bond issue and the manner in which democracy is being subverted. Okay, so ये कांग्रेस की वॉशिंग मशीन है. Let me quickly ask IP Singh ji also. IP Singh ji, एक मैंने एक्चुअली आर्टिकल देखा, उसका क्लिकबेट हेडलाइन था. क्या वरुण गांधी को पीलीभीत से अनाउंस कर दिया समाजवादी पार्टी ने? कोइंसिडेंटली आपने पीलीभीत का अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस भी नहीं किया अभी तक. देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान जो है पूरे देश में लेकर वो चले. मैं तो यही कहूंगा कि वो उनके सगे भाई हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश पे जहां भी उचित समझे, मैं ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं, कांग्रेस को उनको अपनी छाती से लगाना चाहिए और श्री वरुण गांधी को जरूर उतारना चाहिए. मैं समझता हूं कि दो भाई और एक बहन जब तीनों मिलेंगे तो बहुत अच्छा परिदृश्य देश के सामने आएगा और एक बार फिर कांग्रेस देश में मजबूती से खड़ी होगी. मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा हो. और कोई वरुण गांधी बीजेपी की टुकड़े पर पलने वाले नेता नहीं है. उनकी विरासत देखिए ना. वरुण गांधी के अंदर वो टैलेंट चचेरे भाई है. वैसे हर्षवर्धन जी, यूपी के फिर 3 लड़के हो जाएंगे, एक अखिलेश जी, एक राहुल जी और एक वरुण जी. यूपी के 3 लड़के. नहीं पद्मजा जी, आप थोड़ा सा मतलब भूल सुधार हम लोगों को करना चाहिए. राहुल जी तो अब कहाँ रह गए यूपी के लड़के. राहुल जी ने तो मैदान छोड़ दिया है अभी तक की जो खबर है. और अच्छा हो कि हम लोगों की चर्चा से, दबाव की वजह से वो लौट आए. भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अमेठी से गुजर रही थी तो अमेठी के लोग और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में ये उम्मीद कर रहा था कि आज तो राहुल गांधी बोल देंगे कि नहीं, हम अमेठी से लड़ेंगे. हार गए लेकिन लड़ेंगे. 3 बार उनको सांसद बनाया. एक बार हरा दिया तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया. जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जिस प्रदेश ने जिसको कहते हैं कि सर माथे पर बिठाया, वो छोड़ दिया. तो 3 लड़के में 1 लड़के तो ये रहने वाले नहीं है. मतलब दिख नहीं रहा वरुण गांधी रहे तो अच्छा हो. गांधी इज गांधी, चाहे राहुल गांधी या वरुण गांधी. नहीं, बड़ा फर्क है. और मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, अगर वरुण गांधी को लगता है तो उन्हें ये रास्ता चुन लेना चाहिए. ये सच है कि वरुण गांधी ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर और पब्लिक फोरम्स पर जो कुछ कहा है, उसके बाद उनके टिकट की गुंजाइश बहुत कम है. लेकिन क्या वो कांग्रेस में जाकर राहुल गांधी के सामने कोई अपनी भूमिका तलाश पाएंगे? इसके लिए पहले उन्हें प्रियंका जी से थोड़ा बात कर लेना चाहिए. Okay, Sanju Verma wants to respond, but I want to show one more seat and then Sanju Verma, you come in. Mainpuri, a possible impending fight between Bahuz Dimple Yadav versus Aparna Yadav. That could also be very interesting. Yes, Sanju Verma, you wanted to make a point. Thank you. Padmaja ji, I want to make one very interesting point, taking off from where Harshvardhan Tripathi left. If you notice Lok Sabha 2019, because you are driven by numbers, Padmaja, so your audience needs to know that akele BJP got 49.98% vote share. Bahujan Samajwadi Party was at 19.43, Samajwadi Party was at 18.11 and Congress was at 6.36. तीनों विपक्ष की पार्टियां मिलाकर इनका वोट शेयर was 43.9. मतलब तीनों पार्टियां मिलाकर लगभग 44% वोट शेयर और बीजेपी अकेले लगभग 50% वोट शेयर. तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी के 50% वोट शेयर को टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं. क्योंकि यहां आईपी सिंह ने एक बात कही, मैं 10 सेकंड में कहूंगी. He said he had their party, obviously he meant Samajwadi Party had a 37% vote share. मैं वोट शेयर की चार्ट मेरे पास है. पिछले 15 सालों में समाजवादी पार्टी का हाईएस्ट वोट शेयर हैज नेवर क्रॉस्ड 32.1%. बीजेपी हाईएस्ट वोट शेयर इज 50%. इसीलिए वोट शेयर के मापदंड रखे तो समाजवादी पार्टी तो गेम में है ही नहीं. ओके, यूपी के लड़कों की बात हो रही है. यूपी छोड़ दिया राहुल जी ने. इंटरेस्टिंगली आज सीईसी में डिस्कशन हो रहा था. अपेरेंटली तीसरी सीईसी थी, वहां पे भी राहुल जी नहीं आए. Anyhow, I will leave it at that. Let's see what comes out of the CEC and the meeting.
Best of luck to all parties for this impending battle. Thanks, gentlemen. Sanju Verma for joining me.